Yes, sure. Okay. We start with question number 32. Last time I had stopped at 31. I'll start further and we'll start with the subjective at least. Some questions of subjective we'll be doing. See, क्या कह रहा है? Linear mass density of two rods AC and CB is X. तो उसका mass per unit length जो है that is X. Moment of inertia of the two rods about AB. Okay. देखो अगर this is 45 degree. Also 45. This is 90. And this we know it is L by 2 and L by 2 that will become L. So can anyone tell me what is each side in this triangle then? ABC triangle अगर आपको दिख रहा है, ये अगर L है, ये 45 है, 45 है, और ये 90 है. तो कैसे करेंगे हम लोग? Can I do one thing? Can I draw a perpendicular over here? ये 90 बन जाएगा. हेलो, ये बनेगा L by 2. Yes or no? Yes, sir. And this will become what? कितना बनेगा? L by root 2. L by root 2 is opposite to 90 है ना? Can I say cos 45 will become L by 2 by इसको x पकड़ ले, so 1 by root 2 L by 2 by x. Okay. So this will become L by root 2. That is correct. ठीक है, ये मिल गया x. Now that is the length of each rod. मतलब ये length L by root 2 है. And similarly this length will also be L by root. So what will be the mass of the rod? Mass of each rod will be mass per unit length that is given as x. देखो, into its corresponding length. Hello, correct है ना? Yes or no? अच्छा, one thing has to be remembered. Okay, is there एक rod है, moment of inertia about this axis क्या रहेगा? ml square by 12. ये है ml square by 3. मगर अगर एक्सिस ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे थीटा है, making an angle theta, so it is ml square by 12 sin square theta. Similarly ऐसे है, ये theta, theta should be angle made with the rod, that is ml square by 3 sin square. देखो ना यहाँ पे थीटा 90 है ना, तो sin 91 हो जाएगा. करेंगे तो नॉट, ये हमको याद करना है, ठीक है ना? तो अगर आप देखो ये रॉड है, दिस इज द रॉड, ये वाला रॉड जो है साइड में, ये सी वाला, एंड ये 45 डिग्री बना रहा है. What will be a moment of inertia about this axis then? Do you agree? हेलो, अरे Yes, भाई, sir. ये वाला. So like this there are two rods ना, देखो ना, this rod is also also making 45.
So I net will be 2 into ml square by 3 sin square 45. हेलो, अब देखो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो कैन आई राइट दिस एज 2 into m की जगह क्या आएगा? m की जगह ये लिखना है x l by root 2. ठीक है, बाई 3 इंटू एल स्क्वायर. बट इसका एल थोड़ी है, इसका एल इज एल बाई रूट 2 का स्क्वायर. गेटिंग इट? Sin square 45 will become half, no? Are you there with me? Yes or no? Yes, चलो, sir. ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा. ये वैल्यू अगर आप देखने जाएंगे तो दिस विल बिकम x l क्यूब बाय 3 2 6 6 हो जाएगा. ये 2 हो गया, 3 2 6 रूट 2. या x l क्यूब बाय 6 रूट 2. गेटिंग इट और नॉट? हेलो. So simple, it Yes, was sir. simple question only, कुछ इसमें नहीं है. We'll come to another question which is there. It's question number 36. ये बाकी सब easy questions है. 36 and 37 I'll do, then we'll go to subchapter. 36 कर लेते हैं. Two equal and opposite forces are applied tangentially to a uniform disk of mass m and radius r is shown in the figure. If the disk is pivoted at the center, this is the pivot at the center, the angular acceleration of the disk. एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब आपको क्या मांगता है? आपको मांगता है अल्फा. अल्फा इज टाउ बाय आई. हेलो, कितना टॉर्क बनाने वाली चीज है? हु इज मेकिंग द टॉर्क ओवर हियर? F. एफ इनटू आर ना. देयर आर 2 एफ इनटू आर. ये ऐसे, ये भी तो ऐसे. देयर इज 2 एफ इनटू आर by I is pivoted about the center will become mr square by 2 ना. ये कितना हो जाएगा? 4f by mr. हेलो. देखो ना, this will produce a torque f into r, and similarly this will also produce a torque f into r. Getting it ना? Yes, sir. अच्छा, can anyone tell me, will this disk rotate or will this disk move linearly? देखो, अगर आप दिखने जाइए तो f net तो 0 है. लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास. हेलो. It will have only alpha. That means there is only rotational motion is existing, but there is no linear motion. ये चीज easy है, आपको आती रहेगी. Just remember it. Getting it? Okay. Question number 37. Now it will become easy only. A uniform rod AB of mass m and length is free to rotate. The rod is released from rest. The initial angular acceleration. Initial angular acceleration मतलब अल्फा इनिशियल मांगता है. अब ध्यान देना, मेरी बात सुनो. अल्फा कहाँ से आएगा? अभी हमने किया था, अभी हमने वो सम किया था. अल्फा कहाँ से आएगा? हेलो. Gravity. टाउ बाय आर है ना. हेलो. यस और नो? अच्छा, हु इज प्रोड्यूसिंग दिस टॉर्क? mg, which is acting at a distance of l by 2 from the center. The center of mass इधर है. हेलो. यानी ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा ना इनिशियल अल्फा. Can I write this as mg into l by 2 and moment of inertia about the end is ml square by 3. So this will become 3g by 2.
It's actually a standard result only. हेलो, बोलो, करेक्ट है ना? We are applying torque at this point, about the pivot. तो ऐसे ही किधर भी लगा सकते हैं. We starting. We'll do 41st question also. It's a nice question again. 41. देखो मेरी बात सुनो. A uniform rod of length L is free to rotate in the vertical plane about a fixed horizontal axis through B. B से pivot किया जा रहा है. B से pivot किया जा रहा है. And the rod begins to rotate from rest. The angular velocity at an angle theta. जब वो angle theta पे पहुंचा, उसका ओमेगा कितना रहेगा? अब मेरी बात सुना, एकदम इंपॉर्टेंट है. See, I'll use initial kinetic energy plus work done as final kinetic energy. Can I say this is the initial position? And यहाँ पर पूछा है तो this is the final position. So initially जब वो उधर था तो initial kinetic energy तो 0 था. Work done is work done by gravity only. There is no one else. And final kinetic energy when it reaches at that point, it is becoming half I omega square. Hello, are you satisfied with this equation? ये सही है? तो आगे बढ़ेंगे. Hello, Yes, sir. ये सही है ना? हाफ एम स्क्वायर मत लिखना, एम तो वी तो है नहीं है इसके पास, ठीक है ना? अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? अब वर्क डन बाय ग्रेविटी करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन पर वेयर वाज द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? L/2. बराबर है क्या? हेलो, अब सेंटर ऑफ मास जो है वो झुक जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा. हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये थीटा है. नहीं सी, ये L/2 है. तो ये कितना रहेगा? L/2 cos theta. ये हो जाएगा L/2 cos थीटा. Okay, so initial height was at L/2. Final height is at L/2 cos थीटा. हेलो, कितना हाइट नीचे गया वो? How much is the delta H which it goes down? L/2 1 minus cos theta. हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले भी. Okay. Can I say work done by gravity? Gravity is going down will become mg delta H ना. Delta H कितना है? कितना हाइट नीचे गया ना ये. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर था, अब इधर आ गया है. So this is delta H is half I omega square, but I about the rod is ml square by 3 to omega square. What is 1 minus cos theta? Hello, 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2, right? Hello, Yes, sir. this will cancel. So omega is going to become 6g by L sin theta by 2. 6g by L sin theta by 2. This one. So this is important question, ध्यान रखना है, आता ही रहेगा, अगेन करेंगे. This is more asked in the JEE main exam. Yeah.
Now we start with our subjective level questions. They are again very simple. I'll try to do. There are total, I think, 28. 10, 12 we'll do today. ध्यान दो. Question number 1. This, remember the shortcut I had told you? If the radius of the earth contracts to half the value without changing the mass, what is the new duration of the day? Yes, sir. Does anyone know? याद है किसी को shortcut? If R2 is becoming? T square proportional to R cube. No. T square is proportional to R cube is in gravity. That is Kepler's law. Remember I had told you this thing. Time period will become 24 by n square. This we had done. Have we done the proof? Yes, sir. किया था ना मैंने. When the mass remains constant. ये याद रखना. People will get confused with T square is proportional to R cube. Remember T square is proportional to R cube is only valid. इसको क्या बोलते हैं? Yes, whoever told this, इसको क्या बोलते हैं? What is this called as? Rule called as? Kepler's third law. Of which motion, beta? Planetary motion. Planetary motion is revolution or rotation? Think and tell me. Planetary motion is rotation or revolution? Revolution. हाँ. और ये जो क्वेश्चन पूछा है हमारे को, दैट इज अबाउट रोटेशन और रेवोल्यूशन. लुक एट द क्वेश्चन. ड्यूरेशन ऑफ द डे इज रोटेशन और रेवोल्यूशन? Did you understand? Hello. What mistakes do students make in the exam? Hello. I wanted this to be wrong only. No issues, because I had told you first also you cannot use this. ये आएगा ग्रेविटेशन में आएगा, हम लोग यूज नहीं कर सकते. ध्यान रखना बेटा, ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं. ध्यान रखना है हमको. प्लीज डोंट मेक इट. एंड गुड यू मेड दिस मिस्टेक. नो प्रॉब्लम विद दैट. पता चल जाएगा आपको. ओके. रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ द वैल्यू. मतलब हाउ मच इज n? बेटा हाउ मच इज n? 2 है ना. Time period will become 24 by 2 square will become 6 hours. This we had done same sum if you remember. Hello, याद है? वो डबल था उधर, वो क्वेश्चन में डबल था. अच्छा, we cannot use this. हाँ, this is only valid for revolution. एंड यहाँ पर रोटेशन है. रोटेशन में ये शॉर्टकट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. ये शॉर्टकट इस्तेमाल ध्यान रखो. क्वेश्चन नंबर 3 is very important. देखो भैया, again a standard result it is there, 3 and 4. Okay, it's easy only. Once you get the understanding, it will become easy. 2 point masses m1 and m2 are joined by a weightless rod of length L. There is mass m1 and there is m2. They are joined by a weightless rod of length L R. I want to find moment of inertia about the center of mass. चलो, does anyone know the shortcut of? ये मालूम है किसी को? R1 and R2 का वैल्यू? अरे भाई पता है क्या R1 का वैल्यू? Does anyone know? R upon m1 plus m2. ये तो आना चाहिए, m2r upon m1 plus m2. Similarly ये क्या रहेगा? m1r upon m1 plus m2. Remember this thing. और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. ये दोनों पार्टिकल है, बिकॉज रॉड के पास मासलेस है ना. रॉड इज वेस्टलेस, तो रॉड का कुछ भी नहीं रहेगा. तो ये दो पार्टिकल्स ही है जो रॉड के एंड पर लगे हुए हैं. एंड वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास.
The moment of inertia about the center of mass will become m1 into r1 square plus m2 into r2 square. हेलो, तो हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? सो m1 r1 क्या है मेरे पास? r1 आपने बोला ये m2 r upon m1 plus m2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 plus m2 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 plus m2 द होल स्क्वायर. हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, कॉमन क्या निकलेगा? m1 m2 r स्क्वायर, ऊपर भी बचेगा m1 plus m2 और नीचे बनेगा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 m2 अपॉन m1 plus m2 इंटू r स्क्वायर. इस चीज को, इस टर्म को, ये जो टर्म दिख रहा है इसको बोलते हैं म्यू r स्क्वायर, where mu is called as reduced mass. So whenever I need moment of inertia about the center of mass for two particles, moment of inertia will become mu into r square, where mu is m1 m2 upon m1 plus m2. हेलो 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 बाबा, समझ आ रहा है क्या? हेलो, this is moment of inertia about the center of mass of two particle system. Getting it? Yes, sir. Getting it? तो म्यू आर स्क्वायर, म्यू का नाम क्या है? म्यू को बहुत फेमस नाम है, उसका नाम है रिड्यूस्ड मास. मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या किया, ये दोनों मास को एक मास बना दिया म्यू, और उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने कितना डिस्टेंस पर रख दिया? आर डिस्टेंस पर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? म्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ना. यस और नो? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? करेक्ट है ना? ये चीज का ध्यान रखो, ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत यूज होगी, दैट इज ग्रेविटेशन में. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगी इन बाइनरी स्टार सिस्टम. ओके, ठीक है. we'll go to question number 4. Very fast. Radius of gyration of a body about an axis at a distance of 6 cm from the center of mass. तो ये ध्यान देना सब लोग इधर. एक बॉडी है और दो एक्सिस है. कह रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 6 cm, मतलब h इज 6 cm. ओके, radius of gyration of a body about an axis at a distance of 6 cm from the center of mass is 10 cm. मतलब can I say k naught? I naught नहीं है, k naught is 10 cm. radius of gyration की बात हो रही है. Find the radius of gyration about a parallel axis passing through center of mass, मतलब kc निकालने का. हेलो हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आई नॉट और आईसी की बात नहीं कर रहा है, के नॉट और केसी की बात कर रहा है. यस और नो? कैन एनीवन टेल मी व्हिच एक्सिस थ्योरम डू आई नो फॉर दिस थिंग? कम ऑन यार, प्लीज रिप्लाई, अभी सब आता है आपको. कम ऑन फास्ट, प्लीज टेल Parallel. मी व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? आई नॉट इज इक्वल टू आईसी प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. आई को मैं लिख सकता हूं एम के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम के नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा एम के सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम एच स्क्वायर. एम 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 कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद भी कर सकते हो. k नॉट स्क्वायर इज kc स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. हो गया आंसर. चलो, k नॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर, kc स्क्वायर पता ही नहीं है, kc स्क्वायर आपको नहीं पता है, एंड h स्क्वायर इज 6 स्क्वायर. यस और नो? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? ये आंसर kc का आएगा 8 cm. गेटिंग इट? Yes, sir. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें. लर्न बाय. This is very famous again in the JEE main. Very famous question in the JEE main. Okay. Out of 25, 15, 12 to 15 I can say are very straightforward. आपको वही पहचान के वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर देना. क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है.
particle P shown in the figure is moving in a circle. Its radius r with linear speed v. Find the angular speed of the particle about O. Okay. Can I say O is another diametrically point? हेलो हेलो, याद है मैंने सिखाया था ये आपको? अगर अरे सेकेंड लेक्चर में बताया था भाई, ये पॉइंट पी है ना, ये वेलोसिटी v से जा रहा है. कैन आई से ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट क्या रहेगा? v बाय आर बराबर क्या? हेलो, Yes. अच्छा ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट क्या रहेगा? v बाय 2R. 2r because it is v by r perpendicular ना. if you remember बाबा, v relative by r perpendicular याद आ रहा है आपको? सेकेंड लेक्चर में किया था हमने. it was the second introductory exercise. so we need omega about point ये को ये o ले लेते हैं, ठीक है ना. omega about o will become v कितना है 2 by 2 into r. r कितना है 10 cm, that is 0.1. yes or no? हेलो, ये हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड. ध्यान रखना, ठीक है ना. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. तो ऑब्वियसली डन इन द इंट्रोडक्टरी लेवल एक्सरसाइज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 भी कर चुके हैं. A particle of mass m is projected with a velocity v and an angle theta. Find the momentum, find the angular momentum of the point of projection when it is at the highest point. यार ये भी कर चुके हैं हम लोग. हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है? V cos theta. And I need angular momentum over the point of projection. मतलब ये हमारा r परपेंडिकुलर होगा ना, ये पॉइंट. So angular momentum over the point of projection, इसको p पकड़ते हैं, will become mv into r perpendicular. m is m, v is v cos theta at the highest point, r perpendicular is h maximum. h maximum याद है ना, u square sin square theta by 2g. हेलो, याद है ना. ये तो u ही पकड़ लेते हैं फिर से, ये हो जाएगा m u cube cos theta sin square theta by 2g. yes or no? hello, Yes, sir. again is the same thing. Question number 9 is a very nice question. अच्छा है, फास्ट फास्ट हो गया. मैं समझ रहा था कि टाइम लग जाएगा. आराम से वी कैन डू टिल 15 एटलीस्ट ना. 15 तक तो कर ही सकते हैं ना. नेक्स्ट टाइम कंप्लीट तक खत्म कर देंगे. When a body rolls on a stationary ground, the acceleration of the point of contact is always zero. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है. इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? देखो, रोलिंग मतलब क्या? VCM is r ओमेगा ना. एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट का वेलोसिटी? 0. वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, बराबर क्या? और यहाँ पर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है? ये पॉइंट कौन से मोशन में घूम रहा है? हेलो, कौन से मोशन में घूम रहा है? हेलो यार बोलो. Circular. सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. तो कैन आई से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही ना इसके पास, r ओमेगा स्क्वायर. हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. Is the acceleration 0 of this point? No. Can I say acceleration of point P is r omega square towards the center? Yes or no? ये सही है ना? ऑलवेज है, ऑलवेज नहीं पता है. ये आर अल्फा भी आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट ये तो होगा ही ना अभी. ये सही है क्या? हेलो, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ना.
Yes or no? Yes or no? Yes, sir. यार ये तो सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है. अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. ध्यान देना इधर. देखो ये क्या बोलना चाह रहा है. A circular lamina. Okay. Mass per unit area is kx square. Lambda sigma के रो. Lambda sigma रो. Sigma. Sigma दिया है. Kx square. Where x is the distance from O and k is a constant. If the mass of the lamina is m, find in terms of m and a moment of inertia of the lamina about an axis passing through and perpendicular to the lamina. तो circular lamina है. Circular lamina 2D body है. And mass uniformly distributed नहीं है. Since mass uniformly distributed नहीं है, हमको तो go to x and take dx करना ही पड़ेगा. So from the center which is considered to be my origin, I will take a ring which I went to x and I took dx. And the mass of this element is dm. हेलो को समझ आ रहा है क्या? कर चुके हैं ना पहले भी. Yes, sir. Go to x, take dx, dm. dm क्या रहेगा इसका? dm क्या रहेगा? अच्छा ठीक है, चलो स्टेप्स शुरू करते हैं. स्टेप नंबर 1, go to x, take dx. सबको आता है. Go to x, take dx. Step number 2, mass of the element. Mass of the element क्या रहेगा? Mass per unit area into area of the element. Can anyone tell me what is area of element? Area of element. Pi into x plus dx square minus pi x square. Okay. मैं एक काम करता हूँ. मैं मेरी बात सुनो. मैं ये जो रिंग है ना उसको काट के रॉड बना देता हूँ. हेलो. तो ऐसे स्ट्रिप बन जाएगा ना. हेलो बेटा बोलो. सही है. Yes, sir. ये लेंथ कितना होगा? 2 pi x. एंड ये कितना हो जाएगा? dx. तो कैन आई से एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना रहेगा? 2 pi x dx. याद रखना ये ऐसे. एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम आता है बहुत ज्यादा. डबल डबल टाइम प्रैक्टिस करना ताकि याद हो जाए. ये हो जाएगा कितना? kx स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx. 2 पाई k x क्यूब dx. ये मिल गया मेरे को. ओके. अच्छा. स्टेप 3, mi ऑफ दिस एलिमेंट. व्हाट्स दिस एलिमेंट का शेप? व्हाट्स दिस एलिमेंट का शेप? Ring. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या होता है? mr square. बट इसका खुद का मास dm है एंड r इज x स्क्वायर ना. डू यू एग्री विद मी? हेलो mr स्क्वायर ना. सही है ना. Yes, sir. m को अगर मैं लिखूं ये m यहां से उठाऊं तो ये हो जाएगा 2 पाई k और x क्यूब और x स्क्वायर x पाई dx. अगर ये चीज को अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे कैन आई से ऑल द रिंग्स आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू r. तो कैन आई रेंज दिस फ्रॉम 0 टू r एंड दिस विल बी 0 टू I. तो ये हो जाएगा I नेट विल बिकम 2 पाई k r 6/6 pi k by 3 r6. डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? बाबा बोलो. स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं. अब यहां पर आंसर जो है वो कह रहा है आंसर ये टर्म में नहीं मांगता है. आंसर आई नीड इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? अरे बोलो. देखो आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? m and a. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आंसर m के टर्म्स में नहीं है हमको m के टर्म्स में बनाना पड़ेगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा? m नेट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dm. हेलो बताया था ना मैंने लास्ट टाइम. सर हेलो. यस और नो? तो इंटीग्रेशन ऑफ dm. और dm कहां से लेंगे? dm ये है ना मेरे पास. dm तो ये है.
ये इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to r, m net will become integration from 0 to r, m net will become 2 pi k x cube dx. चलो x cube dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 pi k r 4 by 4, तो 2 pi k r 4 by 2, सॉरी, हाँ, हेलो, यस और नो, यस और नो बाबा, हेलो, Yes, sir. तो पाई के क्या हो जाएगा, पाई के इधर से पाई के साइड में ले लो, पाई के विल बिकम, अब एक काम करो, उठाओ इसको एंड पुट इट इन दिस पाई के, 2m by r4 into 3 to r6, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर एंड 2m by 3 r स्क्वायर, यस और नो, हेलो, Yes, sir. समझा ना, अभी मेथड बैठ जाएगा थोड़ा, ओके, वंस इट फिट्स इन योर माइंड देन यू विल बी एबल टू डू इट एकदम आराम से, एकदम स्मूथली आ जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर ये 3D बॉडी होता तो भी हम लोग कर सकते हैं, जब सम आएगा तभी मैं बता दूंगा आपको, you come 3D body then you'll be able to do it. क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है, 12 क्वेश्चन, a ring of radius r rolls on a horizontal ground with speed, linear speed v and angular speed. For what value of omega the velocity of point p will be in the vertical direction? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, हमको सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकाल लेते हैं, बाकी सब छोड़ो। से पॉइंट पी के पास एक वेलोसिटी तो ये रहेगा जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, हेलो, और कौन सा वेलोसिटी रहेगा, आर ओमेगा, यस और नो, Yes, sir. ये तो रहेगा ही, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं हो सकता, ये तो होगा ही, एंड ये एंगल थीटा दिया, करेक्ट है। अच्छा, ये अगर ये एंगल थीटा है तो कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना रहेगा, थीटा ही तो रहेगा, ऐसे दिस इज आर ओमेगा कॉस थीटा एंड दिस विल बी आर ओमेगा साइन थीटा, हेलो, 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 इतना समझाओ। Yes, sir. अब क्वेश्चन देखो, अब कुछ नहीं है, दम नहीं है। आई वांट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी शुड बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कौन सा कंपोनेंट रहना चाहिए और कौन सा कंपोनेंट नहीं रहना चाहिए, Horizontal component should cancel. हाँ, that means v should become equal to r omega cos theta, हेलो, हेलो, ये सुन, दोनों कैंसिल कर देंगे ना, तो कैंसिल करेंगे, तो कैन आई से cos theta is going to become v by r omega, theta is going to become cos inverse of v by r omega, did you understand, हेलो, हेलो, yes or no, Yes, sir. सो ओमेगा को ऐसे फिट होना है ताकि वी आर ओमेगा ये सब मैनेज कर ले और हो जाए, तो ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए, इधर से ही निकालो, वी बाय आर कॉस थीटा, इतना वैल्यू होना चाहिए, इतने वैल्यू पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो ये चीज है वो रह जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन ओनली, ओके, गेटिंग है ना, ओके, एंड यहाँ पर दिया है कि v is less than r omega, so you cannot say that v is r omega, ये होगा। So then how is it rolling?
जमीन भी चल रहा होगा ना, एस्केलेटर पे रखा है. हेलो, getting it? At this instant v is less than r omega. Ground ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, होना तो चाहिए v is r omega. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है. getting it? इसमें क्या हो रहा है कि एस्केलेटर पे रखा रहेगा बेटा. हेलो, यस सर. तो एस्केलेटर पे रखा रहेगा तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा ना. हमने सपोज एस्केलेटर पे रखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये v है, ये r ओमेगा है. सपोज एस्केलेटर भी चल रहा है v1 से. अब बताओ क्या इक्वेशन होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी द सेम ना. हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस सर. देखो ना, v माइनस r ओमेगा शुड बिकम इक्वल टू v1. बराबर है क्या? हेलो, व्हाट विल बी v इक्वल टू r ओमेगा प्लस v1. अब यहाँ पर कौन ज्यादा है? गौतम बताओ V. बेटा. v ज्यादा है. अब सपोज एस्केलेटर उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है. हेलो 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 हेलो, एस्केलेटर इधर नहीं जाता होता, एस्केलेटर उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होता, मतलब पीछे जा रहा होता, तो ये रोल तो कर ही रहा है ना. यस सर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू यार? कुछ भी यस नहीं सर. है. ये हो जाएगा r ओमेगा माइनस v शुड बिकम v1 ना. तो r ओमेगा विल बिकम इक्वल टू v प्लस v1. अभी समझा क्या? ये कंडीशन है. गॉट इट? यस सर. ओके, सो ये चीज है, नहीं टेंशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है. Two forces F1 and F2 are applied on a spool. Okay, mass m, moment of inertia I, passing the center. Find the ratio of F1 and F2 so that the force of friction is zero. Friction इधर नहीं लग रहा है. Given that I is less than 2 mr square. ठीक है. Okay. Now, applied on a spool of the axis passing the center. Find the ratio of F1 F2 so that force of friction is zero. There is no friction applied. Given that I is less than. Okay. यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है. डायग्राम के अंदर और कुछ नहीं दिया. देयर इज नो फ्रिक्शन. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? ए नेट क्या बनेगा? f1 प्लस f2 बाय m. हेलो, ए नेट ऐसे बनेगा कि नहीं? हेलो, यस सर. ऐसा नो, ये सही है ना? अच्छा, अल्फा क्या बनेगा? अल्फा क्या बनेगा? O by I. टाउ कितना है? टाउ कितना है? टाउ 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 2 F1R minus F2R. f1 into 2r ऐसे घुमा रहा है, ये उल्टा घुमा रहा है, तो माइनस f2 into 2r, f2 into r upon moment of inertia which is given. Okay, ये मिल गया. अब जरा क्वेश्चन देखता हूँ मैं इन द बुक only and see anything else given or
Let's just see question number 13. It is two forces F1 and F2 are acting passing center of mass. Find the ratio of F1 F2 so that the force of friction is 0. There's no friction acting. Okay. तो उसको क्या मांगता है कि फ्रिक्शन शुड नॉट एक्ट एंड A should become equal to R alpha. रूलिंग का कंडीशन है ना, रिमेंबर एक्सेलरेटेड प्योर रूलिंग. हेलो, याद है किसी को? Yes, sir. ACM should become, ACM क्या है मेरे पास? Alpha is F1 into 2R minus F2 into R upon I. यहाँ से मुझे रेशियो ऑफ F1 एंड F2 निकालना है, तो ठीक है ना. तो आई विल राइट दिस, आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा IF1 IF2 M square F1 into 2 minus MR square. यस और तो F1 क्या हो जाएगा सर? F1 यहाँ से I minus 2MR square. F2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सॉरी दिस विल गो देयर, सो सॉरी. MR square minus I. F2 will become I plus MR square. So F1 by F2 यहाँ से will become I plus MR square 2MR square minus I. करेंगे ना, and I is less than 2MR square दिया हुआ है, देखो ना, I is less than 2MR square. हेलो, ताकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाए. यस और नो? इज इट मैनेजिंग? बराबर है क्या? Yes, sir. I is less than 2MR square, sorry, less than 2MR square. क्लियर है? ये चीज दी हुई है. फाइन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर. अच्छा, आफ्टर दिस अच्छा, टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग का क्वेश्चन किया था. कौन टॉपल करेगा पहले, कौन स्लाइड करेगा बाद में, वो क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम लोग. हेलो, Yes, sir. वो क्वेश्चन लास्ट टाइम ही किया था हम लोग ने. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 16 पर आता है. क्वेश्चन नंबर 16 आई विल डू. वी हैव 5 मिनट्स. 15th question is done only before. A uniform disc of mass 20 kg and radius 0.5 meter can turn about a smooth axis about the center and perpendicular to the disc. A constant torque is applied on the disc for 3 seconds from rest. An angular velocity at the end of the time is this much. Find the magnitude of the torque applied. If the torque is then removed and the disc is brought to rest in t seconds by a constant force of 10 Newton applied tangentially, find t. तो दो चीजें पूछी गई है. पहले क्या कह रहा है? डिस्क है, मास दिया है इसका, रेडियस दिया है इसका, ओके, स्मूथ एक्सेस है अबाउट द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एक टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई किया 6 सेकंड्स के लिए. तो स्टार्टिंग में आई अप्लाई टॉर्क फॉर 3 seconds. वी अप्लाई टॉर्क एंड 3 सेकंड बाद एंगुलर स्पीड कितना हो गया? 40 by pi, 240 by pi
revolutions per minute, ये दिया हुआ है, ये frequency है actually, frequency final दिया है, frequency initial 0 है. Find the magnitude of torque. तो पहले इतनी बात करते हैं हम लोग, magnitude of torque पहले ढूंढते हैं. ओके चलो बोलो कैसे निकालेंगे. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज mr square by 2 and alpha is omega final minus omega initial by t. हेलो हेलो यार ये तो इजी है ना. m कितना है क्वेश्चन में 20, r is given as 0.5 का स्क्वायर by 2, omega final is 2 pi, n final is 240 by pi divided by 60 minus initial 0 है, by time is 3 seconds. yes or no बोलो भाई. तो ये आंसर इसका आ जाएगा 20/3 न्यूटन मीटर. दिस इज टॉर्क अप्लाइड फॉर 3 सेकेंड्स. ये तो मिल गया. अब कह रहा है, अब क्या बोल रहे हैं कि if the torque is now removed and the disc is brought to rest in t seconds by applying a constant force. तो यहाँ पर सेकेंड केस में this was the first case, यार जहां पर आप टॉर्क लगा रहे हो. सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये घूमता तो जा रहा है ओमेगा से, आपने उल्टा फोर्स ऐसे लगा दिया 10 न्यूटन का ताकि आप इसको रोक पाए. एंड कितने टाइम में ये जाके रुकेगा वो फाइंड करना है. टाइम टू स्टॉप. एंड दिस वाज ओमेगा फाइनल व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम हियर. हेलो 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 यस और नो. Yes. चलो बोलो कैसे क्या करना है. व्हिच फार्मूला अगेन. टॉर्क इज आई अल्फा ना अगेन. बट अभी का टॉर्क क्या है, अभी के डायग्राम में देखो, हाउ मच इज द टॉर्क अप्लाइड, एफ इंटू आर ना. हेलो 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 यार, एफ इंटू आर लग रहा है ना. एम तो mr square by 2 रहेगा एंड अल्फा विल बी ओमेगा by t. yes और नो. आर यू Yes, देयर sir. विद मी. ये हो गया ना आंसर. ये तो वही तो है. ये r और r उड़ गया. e will become equal to m r omega by 2f. और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. m कितना है भाई 20, r is 0.5, omega is 2 pi, n final is 240 by pi divided by 60 and f is given as 10. This time you will get as 4 seconds. Hello. So this is how you do it. I'll continue from 17 to 28 next time. So approximately 10-12 questions are there that will be done very easily. Chalo, take care. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank